So this whole thing about, and it was the Chancellor who had said we'll do it. So is it so difficult for us to do, or do you believe that to rise above our individual groupings, this is important? I'll tell you, almost when I was younger, I used to represent India in one of the sports. I was in Korea with the Indian team. And 15 August ka din tha, so I woke up in the morning, I was telling my team, let's go out and celebrate. It's Independence Day. I didn't realize that Koreans also have the same date of Independence Day. So when I stepped into the balcony, I was living in an apartment. Every apartment had a flag hosted. It was something, at that point of time in India, it wasn't allowed to have a... So it was something, I will never forget that. That visual is still in my brain. I said, when can I do it at my home? And second is when I travel to Kashmir. Now you find Tiranga everywhere in Kashmir, but earlier, before 370, so the moment I used to land up at Boulevard, and I used to look at there's a peak called Saddle Peak, just behind the Shankaracharya temple. Yes. There's a huge Indian tricolor there. तो बड़ा गर्व महसूस होता था कि वाओ, और खड़े होकर ना one used to look at it and identify, being a Kashmiri, identify with that flag. Now I remember the dark night of January 1990, which was Jan 1990, and you had thousands of people out on street waving Pakistani flag, talking about the anti-Indian slogans happened, and there were riots, the minority community was targeted. And I always used to wonder that why couldn't government arrange or protect or arrange a protest, I wouldn't say protest, a rally of Indians in Kashmir taking out the tricolor the very next day? It would have changed, if we would have not seen this 30 years of turmoil which we have seen in Kashmir, it would have changed the narrative, because you allowed a certain narrative to build saying that only Pakistanis live there. The moment you would have allowed the Indians, you had 5 lakh Hindus who were living there, you had a large population of 6, and there, most of the Muslims in Kashmir are Indians. They would have happily come out and carried the tricolor in hand. It would have changed the narrative of 30 years. We would have not seen this 30 years. जो अभी 2022 में हो रहा है वो 1990 में हो जाता। 1990 में हो गया होता तो आज शायद 2022 1990 में ही हो चुका होता। Correct. तो आज if you go to Kashmir today, after you see flag everywhere, you see normalcy everywhere. Yes, there's a fear. I won't say there isn't a fear. There's a fear of terrorists because they attack, but the life is normal today. And I think that is very important. And Har Ghar Tiranga campaign, you asked me honestly, the place where I heard it about the most is Kashmir. Probably because it's a location like that, but people were happy to hoist the flag. People were happy to carry that flag. And I'm very sure that every citizen of India living in Kashmir will hoist that flag on that day between 13 to 15 August. Har Ghar Tiranga truly will happen, will start from the crown of India. No, fantastic. But my point is that Har Ghar Tiranga should not be limited to Jammu and Kashmir or to Assam, which are border states, to Punjab. It should be everywhere. And my follow-up question here is that, see, interestingly, Hari Sikka ji ने कांग्रेस पार्टी की बात की, तो वो एक कांग्रेस के लीडर थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी कि मुझे झंडा लगाने का हक चाहिए. कौन थे, उनका नाम पता है आपको? Naveen Jindal ji. Yeah, so Naveen Jindal ji was the one who won this verdict with the Supreme Court in 2001. So that's where the flag code got changed. But since then, 2001 to 2022, Mr. Deepak Vohra. आपने अभी कहा ना कि तिरंगे को हर जगह होना चाहिए जी। आपको कॉलर में देख रहा हूँ खाली है। अरे लगा दीजिए सर, बिल्कुल एनी टाइम। चलिए अब इसको जरा नहीं सही कर दीजिए। इसको मैं सही भी करूंगा और मैं आपको एक वादा करता हूं कि अब ये स्कॉलर से हटेगा नहीं, हर रोज रहेगा। ये अब पक्का हो गया सर। अब मैं वापस इसलिए आ रहा हूं जो आपने सवाल पूछा है जी, हर दिन क्यों नहीं। मेरा निर्माण इस देश में हुआ था 1951 में। आई वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। सब कुछ देखा है मैंने। 1966 में, सॉरी मैं यहां आ गया हूं। आ जाइए कोई बात नहीं। 1966 मेरी टीम थोड़ा ज्यादा काम कर लेगी इसमें। मैं अकाल था हमारे देश में, भोजन नहीं था हमारे पास। उस समय हमारी प्रधानमंत्री अमेरिका गई अनाज की भीख मांगने। 9 और 11 मिलियन टन
90 लाख और 1 करोड़ 10 लाख टन अनाज हमने अमेरिका से मंगवाया था। तो वहां का एक अखबार लिखता है कि भारत की नई प्रधानमंत्री भीख मांगने आई है। आपको क्या लगता है? मुझे अच्छा लगा था ये सुनकर कि हम भीख मांगने गए थे। फिर उन्होंने लौट के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम अनाज के लिए, खाने के लिए भीख नहीं मांगेंगे, और इस तिरंगे के कारण जो ये ताकत हमको देता है, आज दुनिया में नंबर 2 प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स आपका देश भारत। जब मैं बचपन में था तो स्कूल में क्या होता था कि तिरंगे इतने नहीं थे, तो हम लोग क्या करते थे, कागज़ पे ड्राइंग करके तिरंगा बना लेते थे। और मेरे पास छोटा साइकिल होता था, तो तिरंगे को उसमें एक लकड़ी होती थी, उसमें लगाने का चिपका देते थे आगे, और उसी को लेकर के घूमते रहते वो थे। सिर्फ इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के दिन के हर रोज करते थे? सर मोस्ट प्रोबेबली सर 15 अगस्त और 15 26 अगस्त जनवरी। और 26 जनवरी। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी क्यों? हर दिन क्यों नहीं? सर ये हमारी मेंटेलिटी बना दी गई है, एज एजुकेशनल है, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। मेंटेलिटी बना दी, आपने कभी पूछा ही नहीं? सर एक्चुअली सब यहाँ बहुत लोगों ने कहा ना कि जो हमारा देश के प्रति प्रेम है वो दिल में है, इसलिए सिर्फ 15 अगस्त और 26 तो जो तब है जनवरी बाकी- उस दिन ही रखा गया है। मतलब तो फिर उस सोचते हैं दिन ऐसा। भी दिल में ही रखो, उस दिन भी क्यों बाहर निकालो? सर एक्चुअली क्या होता था कि उस टाइम जब हम बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तो 26 और 15 अगस्त को ही मतलब स्कूल में झंडा फहराता था एंड नेशनल एंथम, वो तो रोज होता है। Do you agree that if I have the national flag in my house every day, there is also the possibility that when I wake up and I see that tricolor, I am reminding myself that I am here to live, work, eat for the country. Is that perhaps the biggest reinforcement that can happen? लोग कहते हैं जबरदस्ती मत करो. I'm just saying that if you have to bring a concept of nationhood and say that what is it that I'm doing for my country today, I have to see the flag somewhere. Because नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, इबादत करते हैं या प्रे करते हैं, पूजा करते हैं या पाठ करते हैं, क्या रिमाइंडर है ना कि हमारे जो इट्स अ स्पिरिचुअल रिमाइंडर. हर रोज ब्रश करते हैं, इट्स अ हेल्थ रिमाइंडर. सो इट्स गॉट टू बी अ नेशनहुड रिमाइंडर समवेयर. वेरी स्ट्रेंज बट बड़ा कमाल की बात है. हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए तिरंगा का वैल्यू क्या है. सरप्राइज? आई एम सीरियस अबाउट इट. आप गूगल करिए, सुनिए स्टूडेंट्स को, और खासकर उन लोगों को जो उस तिरंगे में अपने आप को रैप करके यूक्रेन से वापस आए थे. उन्हें अगर पाकिस्तान का झंडा फहराएं, पकड़ा जाए कि वो पाकिस्तानी है, तो एग्जिट नहीं मिलती थी. तो उन्होंने आके वापस अपने देश में आके जय हिंद बोला था. और पाकिस्तानी जो जिहादीज हैं वो नाराज हुए थे उनसे, तो उन्होंने कहा था कि इस तिरंगे की वजह से आज हम जिंदा हैं. तो घर घर तिरंगा होगा तो लोगों को समझ में आएगा कि पाकिस्तानी क्यों ऐसा बोलते थे. हम अपना वजूद खुद भूल रहे हैं. हमें दुश्मन से, अगर हम उनको दुश्मन मानते हैं, सभी नहीं है वहाँ, प्लीज, जो एक्चुअल पाकिस्तानी लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, वो इंडिया से बहुत प्रेम करते हैं. वो चाहते हैं कि खुले ताकि उनको मदद मिल सके. उनके यहाँ तो कुछ है नहीं बेचारों के, जनरल्स ही उनके खा गए जो भी किया उन्होंने, या उनके पॉलिटिशियंस. दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को, हमारे नेताओं को क्वेश्चन करना चाहिए. दे आर नॉट गॉड्स प्राइवेट गिफ्ट टू मैनकाइंड, दे आर एज ह्यूमंस एज वी आर. पिछली बार आपने CNN ने मेरा वो लाइन काटा था, आज मैं फिर बोल रहा हूँ अब की बार कि आप राहुल गांधी को बोलिए जन गण मन गा के सुना दे एक बार. मैं चैलेंज करता हूं कि वो नहीं गा सकेगा. तो अगर आप उनसे प्रैक्टिस कराएंगे घर पर, तो हो सकता है कि वो देश के भाव को समझ सके. कि वो फौजी जब लिपट के आता है उसमें, तो क्यों कहता है कि उसके माँ बाप कहते हैं कि मेरा अगला बेटा भी ऐसा पैदा हो. तो नेता अगर आपका भ्रष्ट होगा तो देश का भ्रष्ट होना जरूरी है. दूसरी बात, आप जो स्मेयर कैंपेन ऑपोजिशन चलाती है हर बात के ऊपर में, तिरंगे के ऊपर में, घर घर के ऊपर में भी, वी शुड क्वेश्चन दैट. जनता पूछना चाहिए. ये लोग बेपैंदी के लोटे होते हैं. ओके, इस तरफ में घुमाया, वोट इस तरफ है तो इस तरफ झुक जाएंगे. कम लोग होते हैं जो अपनी आन पर तिरंगा के ऊपर में खड़ा रहेंगे. तो ऐसे लोगों को खोजिए आप.